زہر اگلنے والی زبانوں پر لگائی جائے لگام، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی سپریم کورٹ سے اپیل۔ اور انتخابات میں میڈیا کے جانبدارانہ رول پر اٹھ رہے ہیں سوال، صحافتی خبروں کی پامالی سے دانشور طبقہ فکر مند۔ کرناٹک میں بورڈ کی کروڑوں کی جائیداد پر قابض فریق دستبردار، تحفظ الاوقاف کمیٹی 2 ایکڑ اراضی کی بازیابی میں کامیاب۔ اور اتر پردیش میں پروفیشنل کورسز کی فیس واپس اسکیم ناکام، کانپور کے 2000 سے زائد طلباء کی درخواست فارم مسترد۔ اور اب خاص بات کی تفصیل، سب سے پہلے آج کی بڑی خبر۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے اشتعال انگیز تقریروں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ مشاورت کے صدر ظفر الاسلام خان نے اپنے ایک بیان میں سنگ پریوار کے لیڈروں کی مبینہ اشتعال انگیز تقریروں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ظفر الاسلام خان نے کہا کہ پروین توگڑیا، گریراج سنگھ اور راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے جیسے لیڈروں کی مبینہ اشتعال انگیز تقریروں کے ذریعے سماج کو خطرناک انداز میں بانٹا جا رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتعال انگیز تقریروں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مسلم مجلس مشاورت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر زہر اگلتا ہے تو اس کے خلاف قوم مخالف سرگرمیوں کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ مشاورت نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن اشتعال انگیز تقریروں کے معاملے میں نرم رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ ظفر اسلام خان کا کہنا ہے کہ بی جے پی لیڈر امیت شاہ پر سے پابندی ہٹا کر الیکشن کمیشن نے ایک غلط نظیر پیش کی ہے۔ راشٹریہ علماء کونسل نے بی جے پی لیڈر گریراج سنگھ کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کونسل کے صدر مولانا عامر رشادی نے ای ٹی وی سے بات چیت کے دوران کہا کہ جنگ آزادی اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے ملک کی یکجہتی کے لیے بارہا قربانیاں پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرانگیز بیان دے کر گریراج سنگھ جیسے سیاسی لیڈر ملک کے سیکولر تانے بانے کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے زیادہ تیکھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرح بدتمیز اور بےہودی زبان استعمال کر کے اس ملک کے سنویدھان کو گالی نہیں دینا چاہتے۔ لوکتنتر کی عزت کرتے ہیں، لوکتنتر میں ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ اپنی آواز کو غلط طریقے سے بہتر طریقے سے پیش کرے۔ الیکشن امیدوار لڑ رہے ہیں یا میڈیا؟ فیصلہ عوام کے ووٹوں کا کرنا ہے یا میڈیا کو؟ اقتدار کی تشکیل ہندوستانی عوام کو کرنی ہے یا اس ملک کے میڈیا کو؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن پر ان دنوں بحث جاری ہے اور میڈیا کے رول پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ۔ بات چاہے پرنٹ میڈیا کی ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی، توصیف و تنقید کا سلسلہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ بات جب الیکشن کے پس منظر میں کی جاتی ہے تو پھر تنقیدیں بھی شدید ہو جاتی ہیں۔ اقلیتی طبقے کے دانشور اور سیاستدانوں کو یہ شکایت ہے کہ تمام تر اہمیت کے باوجود اس الیکشن میں میڈیا بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کا کردار غیر جانبدار اور منصفانہ نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی منظم سازش کے تحت کچھ ایسے فرقہ پرست لوگوں اور ایسی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں جو ملک کے ساتھ ساتھ ملک کے قدیم جمہوری نظام کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس الیکشن کو نہ تو عوام لڑ رہی ہے اور نہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر اس الیکشن کو لڑا جا رہا ہے۔ اس الیکشن کا پورا ایجنڈا شام کو 6 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک میڈیا اور خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا خود مرتب کرتا ہے، خود ہی گفتگو کراتا ہے اور اس پر جو کچھ بھی ایک تاثر پیدا کر دیتا ہے اس تاثر کو پورے ہندوستان کا تاثر مانا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر جن پارٹیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 55 سیٹیں ملیں گی، 50 سیٹیں ملیں گی اتر پردیش کے اندر، میں اپنے عزیز ترین دوستوں سے میں نے سوال پوچھا جو اس آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں کہ آپ مجھے 10 نام بتا دیجئے جس کے اوپر آپ خود مطمئن ہیں کہ یہ ضرور جیت جائیں گے اتر پردیش کے اندر۔ کوئی ایک شخص 5واں نام نہیں بتا پایا۔ یہ حقیقت بھی واضح اور آشکار ہو چکی ہے کہ میڈیا نے عوام کو بیدار کرنے اور جمہوری حق کی اہمیت کا احساس کرانے میں نہایت عمدہ اور تعمیری کردار ادا کیا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ
सहाफती कदरें तो पामाल हो ही रही हैं, साथ ही सहाफियों का एक बड़ा ग्रुप भी समाजी मफाद को पसे पुश्त डालकर जाती मफादात के लिए काम कर रहा है। इन सब के बावजूद दानिश्वरों का ये कहना है कि अभी मीडिया के किरदार से ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। मीडिया का वो तबका जो एक इलेक्शन में एक मखसूस पार्टी के लिए, मखसूस फिरके के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से एक अच्छे गंगा जमनी तहजीब को, एक खुशगवार माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, उस मीडिया को जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए कम है। और वो एक बड़ा महदूद तबका है, बाकी पूरे मीडिया का बड़ा मजबूत किरदार रहा है और उससे इनकार नहीं किया जाता। जमहूरी मुल्क में इजहार की आजादी का हक सबको है और मीडिया के बारे में जो कुछ तनकीदें और तबसरे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं। यहाँ इस मुहासबे की जरूरत है कि आखिर इन तब्दीलियों का बुनियादी सबब क्या है। फिलहाल असबाब तलाश करने की नहीं बल्कि वो रोल अदा करने की है जो समाज की तामीर और हुकूमत की तश्कील में मुस्बत, मुआविन व मददगार हो। ETV न्यूज, लखनऊ। लखनऊ की पार्लिमानी सीट पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सियासी जमातों ने अपने अपने महारती मैदान में उतार दिए हैं। सब लखनऊ को चमकाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ की तारीख बता रही है कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता रहा है। पेश है लखनऊ के सियासी मंजरनामे पर एक खास रिपोर्ट। लखनऊ को सियासी हलकों में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के पार्लिमानी हलके के हवाले से जाना जाता है, लेकिन आजादी के बाद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख बताती है कि इस हलके में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता रहा है। 15 इंतखाबात में 6 बार कांग्रेस और 6 मरतबा ही बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। जानकारों के मुताबिक इस बार भी बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और कांग्रेस के रीता बहुगुणा जोशी के दरमियान कांटे की टक्कर है। क्योंकि लखनऊ इस देश की सबसे बड़ी प्रदेश की राजधानी है, लेकिन धीरे धीरे ये सीनियर सिटीजन्स का शहर होता जा रहा है। यहाँ कोई युवा रुक नहीं रहा है। जितने प्रतिभाशाली लोग हैं पढ़ाई के दौरान या तुरंत पढ़ाई के बाद बाहर चले जाते हैं। तो जिस जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, एजुकेशन का काफी अच्छा यहाँ इंतजाम है, तो वे भाग क्यों रहे लोग? वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें रोजगार सृजन का कोई अवसर नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये चिंता है कि इस शहर का डेवलपमेंट कैसे हो। संसद बनने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर एक्सपर्ट्स की टीम बुलाकर मैं उनसे पूरा तैयार कराऊंगा, उसमें चाहे जितना भी पैसा लगेगा, कि लखनऊ का यदि हम एक समग्र विकास करना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए और इसमें कितना खर्च आएगा। लखनऊ के सियासी मैदान में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के निखिल दुबे चार रुखी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने मजाहिया अदाकार जावेद जाफरी को मैदान में उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। जो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा, ये ओपन कमिटमेंट है हमारा। हम लखनऊ में मेट्रो रेल बना करके देंगे, हम लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टेडियम बना करके देंगे, हम लखनऊ में IT सिटी बना करके देंगे, हम लखनऊ में सबसे बड़ी हिंदुस्तान की ग्रीन स्पेस जिसमें लाखों पेड़ लगाए जाएंगे, एक लंग का काम करेगी लखनऊ शहर के लिए, वो बना के देंगे। और एक कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि टॉप नॉच कैंसर इंस्टीट्यूट होगा हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए, जहां उसका इलाज भी हो सके और उसमें रिसर्च भी हो सके, ये बना करके देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए सहूलतें हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल, या पैसे दो या कनेक्शन यूज करो, ये सिस्टम ही पूरा सत्यानाश हो गया है पॉलिसी, लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पा रही। वो आम आदमी बेचारा यहाँ से वहां भागता फिर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोज का प्रॉब्लम हो रहा है, पीने का पानी, बिजली, गंदगी, बहुत सी चीजें लखनऊ में आप देखें तो है बड़ा प्यारा सा शहर, लेकिन कुछ बहुत। पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख में जीत के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी का स्कोर बराबर पर है। एक बार आजाद और 2 बार दीगर जमातों के नुमाइंदों ने यहां से जीत हासिल की है। इस बार का नतीजा दोनों कौमी पार्टियों के अलावा दीगर जमातों के लिए भी दिलचस्प हो सकता है। ETV न्यूज, लखनऊ। सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए नित नए तरीके अपनाती हैं, लेकिन एक फलाही तंजीम ने इस सिलसिले में शऊर बेदारी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने वोट डालने वाले मरीजों को इलाज में 50% रियायत का ऐलान किया है। वोटर्स में जमहूरी शऊर पैदा करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आम वोटर्स के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि पोलिंग वाले दिन से 1 हफ्ते तक
उंगली पर निशान दिखाने पर हर मरीज को 50% की रियायत दी जाएगी। ये मिशन नेशन है। हम सब प्लेज टू वोट करते हैं और हम प्रण लेते हैं कि हम वोट जरूर डालेंगे और हम ऐसा वोट डालेंगे जो हम सोच समझ के डालेंगे। थोड़े हम अपने देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे हम जिस भी फील्ड के हों, जहाँ के भी हों, स्टूडेंट हो, यंग हो, ओल्ड हो, फीमेल हो, हाउसवाइफ भी हो, हम सबसे अपील करेंगे थोड़े अवेयरनेस रहे आपको, थोड़ा पॉलिटिक्स में, थोड़ा कंट्री में क्या हो रहा है, थोड़ा देश के लिए और थोड़ा पेट्रियाटिज्म हो मन में, देश सेवा की भावना हो और इस भावना से अपनी अहमियत समझे, अपनी इम्पोर्टेंस समझे। आपका एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है इस देश के लिए। देश इस मोड़ पे पहुंच गया है जहां से हम या तो बिल्कुल नीचे जा सकते हैं गड्ढे में या बिल्कुल ऊपर उठ सकते हैं। तो ये ध्यान में रख के वोट जरूर डालने जाएं। अगर आप वोट डालेंगे तो IMA के हर डॉक्टर आपको, जब आप ये अपना LBD लिटिल ब्लैक डॉट अपनी उंगली पे दिखाएंगे, वोट डालने का प्रमाण दिखाएंगे, तो आपको 50% डिस्काउंट वो देंगे फीस में। और ये कानपुर की जनता कोई नहीं, देश का कोई भी मरीज आएगा कानपुर के डॉक्टर, कानपुर IMA के मेंबर के पास, तो वो ये डिस्काउंट का अवेल कर सकता है, लाभ उठा सकता है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सदर का ये भी कहना है कि वोटर्स मरीजों को डॉक्टर की फीस के अलावा पैथोलॉजी में भी 50% की छूट दी जाएगी। वोटरों को वोटिंग के लिए राग़िब करने के लिए इस पहल की सताइश की जा रही है। ETV न्यूज कानपुर। अक़लियतों को वोटिंग के तय बेदार करने के लिए मुस्लिम तंजीमों ने आगे आने का फैसला किया है। मुसलमानों खुसूसन ख्वातीन को रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। कोलकाता प्रेस क्लब में मिल्ली काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। अक़लियती फिरकों को और ख़ास तौर से मुस्लिम फिरका को इस बारे में याद दिलाएं कि आप अपना वोट इस्तेमाल करें और अपने वोट को ज़ाया होने न दें। ख़ास तौर से हमारी जो माँ बहनें हैं, औरतें हैं, वो घरों से नहीं जाती हैं बाहर और उनको वोट नहीं दिलवाया जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि हमारा कोई भी वोट ज़ाया न हो और हर वोट इस्तेमाल हो। हम अपने वोटरों के अंदर एक जागृति और एक बेदारी लाना चाहते हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने पार्टी को तौसी देने के लिए कई इक़दामात किए हैं। तेलंगाना में हुकूमत की तश्कील में एक एक सीट बड़ी अहमियत की हामिल होगी। इसीलिए मजलिस ने कम से कम 10 असेंबली सीटों पर कब्जा जमाने का मंसूबा बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद पर अपनी तवज्जो मरकूज करती आई है। ताहम अब तश्कील तेलंगाना के बाद बदली हुई सियासी सूरत हाल को मजलिस ने भांप लिया है। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मजलिस बड़े पैमाने पर इक़दामात उठा रही है। तेलंगाना में तश्कील पाने वाली हुकूमत में हैदराबाद की असेंबली सीटें नहायत ही अहमियत की हामिल होंगी। इसीलिए मजलिस ने हैदराबाद के पुराने शहर के हलकों के अलावा दीगर असेंबली हलकों से भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद, अंबरपेट, शेरलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स हल्के असेंबली से मजलिस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हैदराबाद पार्लिमानी नशीद समेत 10 असेंबली सीटों पर जीत हासिल करने की मजलिस ने हिकमत अमली बनाई है। फतेह के मकसद को मद्देनजर रखते हुए मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी अपने उम्मीदवारों के हक में काफी दौड़ धूप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मजलिस के लीडर वोटरों को रिझाने के लिए मकामी मसाइल में से बेशतर के हल का वादा कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी यह है कि जो हमारे पास हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट और 7 असेंबली सेगमेंट्स है उसको इंशाल्लाह रिटर्न करेंगे हम, और उसके साथ हम एडिशन ऐड करने वाले हैं इंशाल्लाह राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स, निजामाबाद और आपके सिकंदराबाद और अंबरपेट। उधर मजलिस के सिटिंग MLAs के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है, जिसे दूर करने के लिए असदुद्दीन अवैसी इन दिनों कोशा नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मजलिस नए हलकों में सिटिंग MLAs के खिलाफ नाराजगी का भरपूर फायदा उठाती नजर आ रही है। 5 साल से बिल्कुल ही पिछले 5 साल में एक मरतबा भी इन इलाकों में सिटिंग MLA तलुशन का ही नहीं, ना वो कोई डेवलपमेंट काम करवाए। जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हमारे लोकल जो कॉरपोरेटर्स है यहाँ के 2
उनके रिप्रेजेंटेशन पे, पार्टी के रिप्रेजेंटेशन में काम हुए। तो पब्लिक जो है बहुत नाराज है लोकल तेलुगुदेशम के सिटिंग एमएलए के ऊपर। तो यहाँ पर कंटेस्ट राजनगर में सिर्फ मजलिस का और कांग्रेस का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहसास है कि दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पार्टी क़यादत को कम से कम 10 सीटों पर अपनी जीत यकीनी नजर आ रही है। इसीलिए असदुद्दीन अवैसी हर दिन किसी न किसी हल्के का दौरा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बेंगलुरु के लालबाग के करीब मौजूद वक्फ अराजी के मामले में रजाकाराना तंजीम कर्नाटक तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी की कोशिश रंग लाई है। तकरीबन 2 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल वक्फ अराजी के मामले में निजी फरीक भंवरी लाल ने अपनी अजदाश्त वापस ले ली है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक़ हुक्काम की मुफाद परस्ताना रविश पर एक रजाकार तंजीम की कानूनी चाराचोरी से 2 एकड़ जमीन पर से गैर कानूनी कब्जे से निजात दिलाने में कामयाबी मिली है। 2007 में खालिद अहमद की क़यादत वाले वक्फ बोर्ड ने लालबाग के करीब मौजूद हजरत अताउल्लाह शाह की औकाफी जमीन को वक्फ की मिल्कियत न मानते हुए भंवरी लाल नामी शख्स को मालिकाना हुकूक दे दिए थे। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाया। 2007 में वक्फ बोर्ड ने एक धोरेलाल नामी बाड़वाड़ी के फेवर में एक जॉइंट मेमो हाईकोर्ट में फाइल करते हुए वक्फ प्रॉपर्टी से दस्तबरदारी तैयार की थी, जिसको कर्नाटक वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। और जो 2008 से आज तक जो है केस पेंडिंग में था। 1 हफ्ता पहले से केस की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान जज ने जब उससे डॉक्यूमेंट्स तलब किए तो वो डॉक्यूमेंट्स तकरीबन जो है उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं थी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी को मुबारकबाद पेश की है। जो वक्फ प्रोटेक्शन फोर्स जो ने केस किया तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग भी बहुत मेहनत किए इसके पीछे। तो आज वो प्रॉपर्टी 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इंशाअल्लाह अभी जो फैसला हो चुका है उसको वो प्रॉपर्टी को हम टेक ओवर करेंगे और उसमें जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसमें कौम का बहुत बड़ा फायदा होता है। वक्फ बोर्ड मिल्कियत को बचाने के लिए कमेटी के इक़दाम की सताइश की जा रही है। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। झारखंड अक़लियती कमीशन के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने की। मीटिंग में अंजुमन इस्लामिया की वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जाजात से आजाद कराने और दुकानों के किरायों में इजाफा करने पर गौर किया गया। मीटिंग में रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ नूरुल खुदा भी मौजूद थे। तो है कि हमारी जमीनों को जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको कैसे आज़ाद करवाया जाए, और जो किराया नहीं मिल रहा है दुकानदारों से तो उस पर भी बातचीत हुई है। एक लाया अमल तय किया गया है कि किराया का रियलाइजेशन होगा, नहीं तो दुकानदारों से दुकान खाली करवाया जाएगा। रिव्यू कर जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से सभी का रेंट फिक्सेशन हो, और जो डिफॉल्टर जो इंक्रोचर है उनके ऊपर में नए एक्ट में जो प्रोविजन है कि अगर उनको नोटिस दिया जाए, नोटिस होने के बाद अगर वो नहीं हटते हैं तो उनको 3 साल तक के लिए एफआईआर हो और 3 साल तक के लिए सजा हो। कर्नाटक में हज सन 2014 की कुरानंदाजी इसी माह की 27 तारीख को होगी। ऑनलाइन कुरानंदाजी के जरिए 4,977 आजमीन का इंतखाब होगा। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मरहूब अहमद ने ये जानकारी दी है। चेयरमैन के मुताबिक 27 अप्रैल की शाम 4:30 बजे बेंगलुरु के विधानसौधा के बैंक्वेट हॉल में कुरानंदाजी की जाएगी। कुरानंदाजी का इफ्तिताह रियासत के वजीर आला सिद्धारामैया के हाथों अमल में आएगा। इस मरतबा कर्नाटक हज कमेटी को 17,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। झारखंड की मुख्तलिफ तंजीमों ने तमाम आजमीन हज की दरख्वास्तों को मंजूर करने की दरख्वास्त की है। इसी साल हज सन 2014 के लिए 3,060 आजमीन ने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन मरकजी हज कमेटी ने 2,873 आजमीन का कोटा मुकर्रर किया है। 26 अप्रैल को कुरा अंदाजी होने वाली है।
उधर मुंबई के हज हाउस में आज महाराष्ट्र के आज़मीन हज की कुरानदाजी अमल में आई। इस मरतबा हज हाउस के जरिए 7,907 आज़मीन सआदत हज से सरफराज होंगे। चूंकि 7,871 नशिस्तें पहले से ही महफूज जुमरे के तहत थीं, इसीलिए आज सिर्फ कुरानदाजी के जरिए 36 आज़मीन का ही इंतखाब किया गया। महफूज जुमरे के तहत 2,702 आज़मीन 70 बरस की उम्र से ज्यादा है, जबकि 5,169 आज़मीन ऐसे हैं जिनका गुज़िश्ता 3 बरसों से कुरानदाजी में नाम नहीं आया था। रवा साल महाराष्ट्र हज कमेटी को 48,177 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से अक़लियती फ़िरक़े के तलबा के लिए चलाई जा रही फीस वापसी स्कीम अब दम तोड़ती नजर आ रही है। इस स्कीम के तहत आला पेशेवराना तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को 2 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत की तरफ से फीस नहीं मिल पाई है। यूपी में अक़लियती फ़िरक़े के लिए चलाई जा रही स्कीमों में फीस वापसी स्कीम की खूब तशहीर की गई थी। इस स्कीम के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग और पेशेवराना कोर्सेज की फीस हुकूमत की तरफ से अदा करने का मंसूबा था। अक़लियती नौजवानों ने बड़ी तादाद में आला तालीमी इदारों में दाखिला लिया। ज़ाब्ते के मुताबिक दाखिले के वक्त तलबा को फीस अदा करनी थी और बाद में हुकूमत फीस वापसी का वादा था, लेकिन फीस वापसी का फॉर्म भरने के बावजूद हजारों तलबा को फीस वापस नहीं की गई। मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति 3 साल से आज बराबर नहीं मिल रही है, और जब यहाँ पूछो तो कहते हैं स्कॉलरशिप चली गई है। ताकि किन छात्रों को स्कॉलरशिप दे दी गई है, फंड ट्रांसफर हो गया, फंड नहीं है, अजीब अजीब के बहाने बना रहे हैं ये लोग। जब पूछा गया अगर किन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है, कोई क्राइटेरिया आपने तय किया तो मुझे मालूम नहीं, तो आप अधिकारी बन के क्या बैठे जब आपको क्राइटेरिया नहीं मालूम। मैंने जवाब मांगा है। जो गरीब छात्र हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं, जिनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिल में रहम का प्रदर्शन करती है और साथ ही साथ उनके पीठ में छुरा भोगा जा रहा है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का ऐसे ही शिक्षा स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। कानपुर में फीस वापसी के 4,000 से ज्यादा फॉर्म मुस्तरद हो चुके हैं। चूँकि फीस वापसी के फॉर्म ऑनलाइन भरे गए थे, लिहाजा मुताल्लिका अफसरान इस बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ कहने से कतरा रहे हैं। ये महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट है जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस के श्रेणी में है। इनके छात्रों ने शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग की थी। शासन की तरफ से जो हम लोगों को जिन खातों में भेजना था उनमें इनके लिस्ट में नाम नहीं था। वो चाहते हैं कि इनको सम्मिलित किया जाए, तो हम लोगों ने इनकी डिमांड जो उन्होंने मांग रखी है वो हम लोग निदेशालय और शासन तक पहुँचाएंगे। फीस वापसी के लिए तलबा मुताल्लिका अफसरान के पास चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी हजारों तलबा फीस की रकम से महरूम हैं। ईटीवी न्यूज कानपुर। रांची की खुशबू खान मुस्लिम मुआशरे की फलाह व बहबूद की कोशिशों में मसरूफ है। खुशबू मुस्लिम ख्वातीन को मुफ्त में तालीम के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ उन्हें खुद कफील भी बना रही है। उनकी इन काविशों के असरात अब जाहिर होने लगे हैं। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की मुस्लिम तालिबात मुख्तलिफ तरह के हुनर हासिल कर रही हैं। समाजी कारकुन खुशबू खान उन्हें मुफ्त सिलाई कढ़ाई, ड्रेस डिजाइनिंग, फ्लावर मेकिंग, फ्लावर पॉट मेकिंग, नाग की चूड़ियां बनाने, फैशन की मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बनाने जैसे हुनर से आरास्ता कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन खवातीन को ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और दीगर कोर्सेज से भी रोशनास कराया जा रहा है। हुनर हासिल कर ये तालिबात बेहतर रोजगार हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं सब चीज़ सीखी हूँ, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, कटिंग, सब चीज़ सीखी हूँ। और इससे ब्यूटिशियन से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बन गई हूँ और मेहंदी भी हर जगह शादी पे जा के लगाती हूँ, जिससे काफ़ी अर्न कर लेती हूँ। लड़कियों के लिए खास करके घर बैठे भी आप बहुत अर्न कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बाहर जा करके भी आप बहुत अर्न कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ ब्यूटिशियन का ही कोर्स नहीं कराया जाता, बहुत कुछ कराया जाता है। खुशबू खान पिछले कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम देती आ रही है। माली व दीगर वजूहात के सबब स्कूल न जा पाने वाली तालिबात के लिए
खुसूसी तौर पर इन्होंने क्लासेस का भी इंतजाम किया है ताकि इन्हें 10वीं के इम्तिहानात के लिए भी तैयार किया जा सके। खुशबू खान के मुताबिक अब तक 4000 से ज्यादा तालिबात को बाकायदा तरबियत दी गई है। हमारा मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, खास करके मुस्लिम महिलाएं जो आज दबी हुई हैं, घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, बहुत सारे प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो हमने एक ऐसा माहौल बनाया है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं और यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को फ्री में बहुत सारे कोर्सेज सिखाए हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी है जिनसे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, घर पर ही बैठे वो रोजगार अपना कमा सकती हैं। और आखिर में नजर सुर्खियों पर। जहर उगलने वाली जबानों पर लगाई जाए लगाम, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की सुप्रीम कोर्ट से अपील। और इंतखाबात में मीडिया के जानिबदाराना रोल पर उठ रहे हैं सवाल, सहाफती खबरों की पामाली से दानिश्वर तबका फिक्रमंद। कर्नाटक में बोर्ड की करोड़ों की जायदाद पर काबिज फरीक दस्तबरदार, तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी 2 एकड़ अराज़ी की बाजियाबी में कामयाब। और उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनल कोर्सेज की बड़ी स्कीम नाकाम, कानपुर के 2000 से ज्यादा तलबा की दरख्वास्त फॉर्म मुस्तरद। खास बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।